So hi dear students, good morning to all. Welcome to our channel, YouTube channel Srinivas Chemistry. So my dear students, in our last video or last lecture, we already completed the chapter alcohol. Today we will discuss the new chapter phenol. Okay, so today's topic is your phenol. Alcohol, phenol, ether. That phenol is another important chapter. So phenol is also called as a carbolic acid. Phenol is also called as a carbolic acid. And the phenol is acidic in nature, already we discussed. So today we will discuss more about phenol. That phenol is formed, that is benzene, your हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ aromatic compound, जैसे कि बेंजीन से एक H के बदले OH लग सकता है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव. दिस इज योर C6H5OH. So this is your phenol formula, or you can say, or you can write this is in the aromatic structure phenol, benzene or OH. This is your phenol. So benzene के बदले एक OH H हटकर वहाँ से OH लगेगा. This is, we can say also be, this is the hydroxyl derivative, okay, of the aromatic hydrocarbon benzene. So this formula represent for phenol. Clear, my dear students? Now we'll discuss more about phenol, and that is if some substituent of phenol name we can also write. This is phenol is there, or this is CH3 group, we can say orthomethyl phenol, or this is called orthocresol, or this position will be metacresol, paracresol, like you know. Suppose this compound of OH is attached with another compound, derivative of some phenol compound NO2. What we are saying? This is orthonitrophenol. Orthonitrophenol. But the chapter today's topic is phenol. So first we will see about the methods of preparation of phenol. How can we prepare the phenol? So what are the methods of preparation of phenol is first. So my dear students, not to delay now, I will start the class, as well as phenol preparation is here. Now we will discuss about the preparation of phenol. So how phenol is prepared? So phenol formula now already you know. This is the structure of phenol. We will discuss today in this video. We will discuss about the methods of preparation of phenol. Methods of preparation of phenol. How can you prepare the phenol? हम phenol कैसे बना सकते हैं? So method number one, from your chlorobenzene, from chlorobenzene or haloarenes. From chlorobenzene, how can you prepare the phenol? Method number one. You know that chlorobenzene already we discussed in our haloarenes chapter. This is the chlorobenzene. How can you prepare phenol from chlorobenzene? When a chlorobenzene reacts with the aqueous solution of sodium hydroxide in a drastic condition, because it is undergoes nucleophilic substitution, but very difficult. So what will happen here? So OH bond will break here, O minus, clear. This compound will shift here, and the compound on the heating, this temperature is must there 623 Kelvin under 200 atmospheric pressure. On this condition, thus the nucleophile sodium phenoxide ONA will be substituted here and chlorine will be left. This is your HCl form, and the compound is your first sodium phenoxide ONA. This compound is called sodium phenoxide. Sodium phenoxide. Then again acidification, HCl. Then how? H will be substituted there, and this compound is become phenol will form. Phenol will form, and Na and Cl, this is NaCl will be released byproduct. So my dear students, we can prepare the phenol from chlorobenzene by this mechanism, this concept. When chlorobenzene reacts with the aqueous solution of sodium hydroxide, NaOH, aqueous solution of sodium hydroxide, it is difficult to aromatic compounds show the nucleophilic substitution, but under the drastic condition of this temperature, if we will put the temperature of 623 Kelvin temperature and around 300 atmospheric pressure, then what will happen? Then the reaction might be occurs. The sodium phenoxide ion will form, O bond will be cleavage here, and heating ONA will be here, ONA. So this compound is under Cl and H is become HCl will be left. This is sodium phenoxide form. After that is acidification, phenol will form. So in this way we can prepare the phenol from chlorobenzene. So this reaction is also called as Dow's process. This reaction is also called as your Dow's process.
Dawes process. So it is a completely nucleophilic substitution reaction. This nucleophile is being substituted first. So this is a complete nucleophilic substitution reaction. In difficult condition, this type of reaction will show. Actually, it is not easy to show the aromatic compound, the nucleophilic substitution reaction. Clear? Basically, they are showing the electrophilic substitution reaction. So this is the first method, preparation of a phenol from chlorobenzene. So my dear students, first it will react the aqueous sodium hydroxide solution with the chlorobenzene under the drastic condition of a 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. Then the sodium phenoxide ion will be formed, which on further acidification to form phenol. Clear? Method number 2. Method number 2, you are from cumene. Method number 2, from cumene. How can you prepare phenol from cumene? What is your cumene? Your isopropyl benzene is called cumene. Isopropyl benzene. Isopropyl benzene is called cumene. Is called cumene. So we can prepare the phenol from cumene. This is the formula stands for cumene. CH, CH3, CH3. Actually, how this compound is prepared? It is also prepared from benzene. When benzene reacts with the propene, benzene reacts with the propene molecule, then when benzene reacts with the propene, CH3, CH double bond CH2 propene, then it will form the compound cumene. This compound is called your cumene. So isopropyl benzene is called your cumene. When cumene is oxidized, when passed with the air, cumene on oxidation, what will happen? The two oxygen will be entered in the carbon bond, near of carbon, and this is form the product COOH, and this is your CH3, CH3. Clear? So this oxygen will be entered inside the carbon and the form is COOH, CH3. This is your cumene hydroperoxide. Cumene hydroperoxide. This is the unstable compound, and this compound is to be stabilized by adding water in acidic medium. Under the hydrolysis, it is adding on hydrolysis in acidic medium. This is compound to be stabilized. It will form your phenol. Benzene ke upar OH, this compound will be attached with the phenol. The product is your phenol, and the acetone molecule will form CH3, CO, CH3, and the one part. Another is phenol will form. Phenol plus acetone, CH3, CO, CH3. So this is your acetone, and phenol will form. So in this reaction, we can prepare the phenol from your cumene. So in your exam question may be asked, how can you prepare phenol from cumene? So cumene on oxidation, how cumene is formed? Cumene is when benzene reacts with propene, cumene will form. Cumene on oxidation or cumene on exposed to air, this is to form cumene hydroperoxide, which is also converted to phenol and acetone by treating with the dilute acid. Clear? So this is the reaction. Phenol is formed and dilute acid, phenol will form and acetone will form. This is the method number 2, preparation of a phenol. Now we'll see the method number 3. Method of preparation number 3. Rub it. Okay. Again, how can you prepare that is phenol from benzene diazonium chloride? Method number 3. Method of preparation of phenol. Method number 3. Method number 3, that is preparation of phenol. Method number 3, from BDC, benzene diazonium chloride. BDC, benzene diazonium chloride. So when benzene diazonium chloride, this is the BDC structure, you know, benzene N2 plus called your diazonium, Cl minus is called chloride ion. So this compound is a BDC, benzene diazonium chloride. On hydrolysis, benzene diazonium on hydrolysis in warm water, in some book it is written. Okay, so benzene diazonium chloride on hydrolysis in warm water,
कुछ बुक में दिया होगा वार्म वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करने से। और बीडीसी को निकलने के लिए और एक है, हमको पढ़ाएंगे, हम उसको एनिलीन से भी बना सकते हैं फ्रॉम बीडीसी, और कभी कभी बुक में फ्रॉम एनिलीन पूछा होगा। आप फिनल एनिलीन कंपाउंड से कैसे बना सकते हैं, अमीनो बेंजीन। अभी एनिलीन से बीडीसी निकलना डाइजोसिएशन प्रोसेस है, एनिलीन, दिस इज कॉल्ड योर अमीनो बेंजीन, एनिलीन। यदि एनिलीन देखो, एनिलीन में सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जब मिलाओगे, नाइट्रस एसिड भी कुछ कुछ बुक में देता है, नाइट्रस एसिड HNO2 HONO। अब ये निकलना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए दोनों को जब जितना मिलाओगे ये निकल आएगा नाइट्रस एसिड। तो जब सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों मिलेंगे, कौन सा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के दौरान इस रिएक्शन को करोगे। एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में दिया होगा 273 केल्विन टू 278 केल्विन के दौरान। यदि एनिलीन को आप इस रिएक्शन करोगे तो एनिलीन बन जाएगा BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N प्लस N ट्रिपल वन NCl माइनस, और यू कैन राइट N2 प्लस Cl माइनस। यदि उसको हम वाटर में डाल देंगे, BDC ऑन हाइड्रोलिसिस, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, नाउ द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म फिनॉल, द मेजर प्रोडक्ट विल फॉर्म योर फिनॉल, OH लगेगा, तो यहाँ से N2 बाई प्रोडक्ट N2 एंड HCl निकल सकता है। तो बाई प्रोडक्ट दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट फिनॉल विल फॉर्म। So my dear students, this is another method for preparation of a phenol from BDC पूछ सकता है, BDC बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यदि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ वार्म वाटर और रिएक्ट विथ वाटर, इट विल फॉर्म फिनॉल, OH लगेगा इधर और नाइट्रोजन गैस निकलेगा और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल सकता है। तो ये रिएक्शन को BDC से फिनॉल हम निकाल सकते हैं, BDC में सिर्फ पानी डालने से हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ BDC फॉर्म योर फिनॉल, इट इज अ वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्लियर। और एनिलीन से भी BDC बना सकते हो, NCERT बुक में दिया होगा, एनिलीन विल बी कन्वर्टेड टू बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस रिएक्शन नेम इज आल्सो कॉल्ड डायजोसिएशन, डायजोसिएशन। इसको हम एनिलीन चैप्टर में भी और एक बार पढ़ाएंगे। एनिलीन कन्वर्टेड टू BDC, देन BDC कन्वर्टेड टू फिनॉल बाय एडिंग वाटर। सो दिस इज मेथड नंबर 3. From BDC we can prepare. Then another method we will discuss. Another is from benzene sulfate, method number 4. Method number 4, preparation of a phenol. Method number from benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid और benzene fuming sulfuric acid, कभी कभी देखता है ओलियम fuming sulfuric acid। तो इसमें क्या होता है, देखो बेंजीन से आपको क्या करना है, बेंजीन में पहले आपको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है। तो इसमें से हमको पता है इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ SO3H, दिस इज योर, इसको ऐसे आप लिख सकते हो याद रखने के लिए से भी OH माइनस SO3H प्लस। एक्चुअली इसका इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3 इस रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करके होता है OH माइनस, ओके, एंड यहाँ से H निकलेगा, वाटर बन के चला जाएगा, दिस इज माइनस H2O, कैन राइट। तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मिलेगा दिस कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेकेंड स्टेप यदि उसमें आप एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से यहाँ से ONA चलेगा, तो यहाँ से क्या हो सकता है OH वाटर का SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो निकलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ONA SO3Na, और इसका OH वाटर निकल के चला जाएगा, इसका OH और H वाटर निकल जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और उसके बाद यदि उसमें आप क्या करना है, और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस सोल्यूशन का डाल सकते हो, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने, ये बन जाएगा आपका Na2SO3 मिल जाएगा, Na2SO3 सोडियम सल्फेट में कितना बुक में दिया है, और उसके साथ पानी में निकल जाएगा Na2SO3 माइनस H2O, सोडियम सल्फाइड एंड वाटर निकल जाएगा, तो ये आपके लिए मिल जाएगा सोडियम फेनोक्साइड, ONA, दिस इज योर सोडियम फेनोक्साइड।
अभी क्या करना है, सोडियम फेनोक्साइड में मुझे थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है, एसिडिफिकेशन करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से बल्लो हमको यह पता है सोडियम फेनोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या निकलेगा, फिनल। सोडियम फेनोक्साइड ऑन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पर H शिफ्ट हो जाएगा, फिनल मिल जाएगा। तो दिस प्रिपरेशन मेथड इज इंडिकेटेड द प्रिपरेशन ऑफ फिनल। सो फिनल ओके मिल जाएगा, OH इधर चलेगा, फिनल प्लस NaCl, तो माइनस NaCl। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ से शुरू कर सकते हो, नहीं तो बेंजीन में सल्फ्यूरिक एसिड डालकर ऐसे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस डालने से सोडियम फेनोक्साइड, और एसिडिफिकेशन सोडियम फेनोक्साइड विल फॉर्म यू फिनल। एसिडिफिकेशन HCl डाल सकते हो, तो ये जो बन जाएगा फिनल, सिंपल। तो ए और एक मेथड है। तो ये चारों का चारों मेथड आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनल था, प्रिपरेशन ऑफ फिनल। फिनल कैसे बना सकते हैं, अभी चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल? नाउ विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में फिनल बहुत बढ़िया सा प्रॉपर्टी फिनल को देखने का मिलेगा इधर। फिनल का एसिडिक नेचर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनल। फिनल का एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करो। एसिडिक नेचर, इंक डाला नहीं क्या ठीक से? एसिडिक नेचर ऑफ फिनल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनल हम देखेंगे। उससे पहले फिनल के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनल। क्लियर? तो एक सबसे बढ़िया बात है, फिनल का एसिडिक नेचर हम स्टडी करेंगे। तो फिनल इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब एसिड नहीं है, एसिडिक नेचर, एसिड उस एसिड तरह बिहेव करता है, उसका मतलब फिनल एक एसिड नहीं है, जैसे अलग अलग एसिड है। फिनल एसिड तरह बिहेव करता है। एसिडिक नेचर ऑफ फिनल हम बात करेंगे। देखो बेटा, फिनल जो एसिड होता है, एसिड का ऑर्डर दिखा जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर दिखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर ऑफ, इफ यू विल सी एसिडिक नेचर, सो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन कंपेयर टू योर फिनल। इफ यू एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछता है। देन वाटर, देन अल्कोहल। अल्कोहल इज वेरी वीक एसिड और कैन न्यूट्रल नियरली वी कैन से ऑल्सो भी। तो कंपेयर करो एसिडिक ऑर्डर, तो फिनल क्या होता है, फिनल वाटर और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिड है। अभी एसिडिक नेचर ऑफ फिनल डिस्कशन करने से पहले हम एक बात करना चाहेंगे। एसिडिक नेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है? द हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, stronger is the acid. Higher the value of K, or you can say lower the value of pK, lower the value of pKa। ये याद रखो। यदि कहाँ पर K वैल्यू, K मतलब आपको तो मालूम है, लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ K, जिसका K वैल्यू ज़्यादा है उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा है। हायर द वैल्यू ऑफ K, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। हायर द वैल्यू ऑफ के, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जिसका के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि के वैल्यू को देखते हैं तो पता है कि के वैल्यू का एसिड कितना वैल्यू होता है। तो के वैल्यू करीबन आपको दिखने को मिलेगा एसिडिक नेचर में। तो के वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इफ यू सी द वैल्यू के, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो के वैल्यू होता है वो होता है 10 टू द पावर -5, और करीबन अप्रोक्सीमेटली के वैल्यू उसका होता है 10 टू द पावर -10, किसका? फिनल का। और ये होता है 10 टू द पावर -14, और ये होता है 10 टू द पावर -18। तो क्या बच्चों आपको क्या दिखने को मिलता है? हायर द वैल्यू ऑफ के। तो के वैल्यू किसका ज़्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कुछ वैल्यू ऐसे दिया होगा के डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, तो के वैल्यू को देखकर सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का 10 टू द पावर -5, माइनस याद रखो, ये 10 to the -10, 10 to the -14, 10 to the -8। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है वो फिनल से कितना गुना ज़्यादा होता है? कितना? फिनल से ज़्यादा होता है ना? नहीं, तो 10 to the power -10 और 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। समझ में?
तो इसी तरह के वैल्यू को देखकर हम एसिडिक नेचर भी बता सकते हैं, कौन ज़्यादा एसिड है कौन कम एसिड है। जिसका के वैल्यू ज़्यादा होगा दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बता रहे थे, अभी क्वालिटेटिव दिखाएंगे। फिनॉल और अल्कोहल के अंदर एसिड कौन ज़्यादा है, तो अल्कोहल क्यों सबसे वीक एसिड है और फिनॉल क्यों उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है। अभी एक ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे फिनॉल और अल्कोहल के अंदर क्या होता है। एक क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस में भी आता रहता है, नीट क्वेश्चन में आता है बार बार, और कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में भी एक क्वेश्चन में आता रहता है। तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और वाटर और अल्कोहल के अंदर एसिडिक नेचर। चलो एसिडिक नेचर के बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। सो एसिडिक कब एक सब्सटेंस एसिड होगा, देखो अल्कोहल में क्या होता है, अभी हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल और फिनॉल, ये दोनों के अंदर एसिडिक कैरेक्टर हम स्टडी करेंगे। क्या होता है डिस्कशन, अल्कोहल और फिनॉल में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बेटा अल्कोहल में क्या होता है, जब अल्कोहल क्या होता है, जब H+ आयन रिलीज करता है तो बनता है RO- प्लस H+, इसको पढ़ते हैं अल्कोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन। अभी फिनॉल में क्या करता है, फिनॉल में यदि एक H+ आयन निकल जाएगा तो बन जाएगा क्या, बेंजीन के ऊपर O-, उसको पढ़ते हैं फेनोक्साइड आयन। इसको क्या पढ़ते हैं, फेनोक्साइड आयन, याद रखो। ये क्या प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों में अंदर डिफरेंस क्या है, देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हेलो, अल्कोहल और फिनॉल के अंदर कौन ज्यादा एसिड है कौन कम एसिड है, तो फिनॉल इज मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक। व्हाई इट इज मोर एसिडिक हमको अभी बताना है। और अल्कोहल जो वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड होता है, क्यों होता है अभी कंपेयर करना है। अल्कोहल और फिनॉल के अंदर क्या है, जब अल्कोहल से H निकल जाता है तो अल्कोहल में क्या होता है, ऑक्साइड जो आयन होता है RO-, याद रखो। R कौन सा ग्रुप है, R एक प्लस आई ग्रुप है जिसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुश करेगा, प्लस है। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुश करेगा, तो पहले से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेवलप है, तो माइनस को स्टेबल करने के लिए प्लस चार्ज की जरूरत है, माइनस को स्टेबल करने के लिए उससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। मगर यहाँ क्या होता है, अल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर और भी नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर भी नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो वो और भी अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में। तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा तो अल्कोक्साइड फिर H को इधर खींच लेगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज नहीं करेगा। सो यहाँ पर रिजोनेंस नहीं हो सकता, इट इज नॉट रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप का यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर जो R ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पहले जो नेगेटिव चार्ज था और इस इलेक्ट्रॉन इधर आने से और भी नेगेटिव बन जाएगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव बन जाने से अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अनस्टेबल होने से क्या होगा, वो फिर जो H+ दिया था इधर खींच लेगा, फिर समझ में। और अल्काइल ग्रुप में कोई रिजोनेंस होने की चांस भी नहीं है, तो इसलिए अल्कोहल एक वीक एसिड है, ये इसका H+ इजीली क्या निकल नहीं सकता और कैन नॉट बी इजीली फॉर्म। सो अल्कोहल इज प्योरली वीक एसिड लिख सकते हैं, न्यूट्रल कभी कभी लिखा जाता है। मगर फिनॉल में ऐसे कुछ नहीं दिखने को मिलेगा। फिनॉल में क्या होता है, दिस अल्कोक्साइड इज नॉट स्टेबलाइज्ड हियर, फेनोल आयन, फेनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड। तो कैसे स्टेबल होता है हम रिजोनेंस के साथ बात करेंगे। तो यहाँ से फेनॉल में क्या होता है, देखो क्या डिफरेंस है, ये जो बेंजीन के ऊपर O- होता है वो होता है फेनोक्साइड आयन। अभी क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है, पाई बॉन्ड ज्यादा है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके रिजोनेंस के जरिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। तो रिजोनेंस के जरिए क्या होगा, जो ऊपर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर अंदर चला आएगा, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर स्टेबिलिटी डेवलप हो सकता है। तो चलो उसका डिटेल्स हम करते हैं। ओके, रिजोनेंस। तो माय क्वेश्चन इज नाउ इन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल व्हिच इज मोर एसिडिक। ऑफ कोर्स फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल,
Why? Because in alcohol, due to plus I effect, the negative ion which is formed in the alkoxide ion is not stabilized. So this is the region. So due to unstable condition, the alcohol is less acidic. But in phenol, the stabilization is developed by resonance structure of a phenol. So now we'll see the resonating structure of phenol briefly. चलो resonance structure बनाते हैं phenol का. So now we'll see the resonance structure of phenol. So phenol is resonance stabilized होता है. तो ये क्या होता है, phenol जो होता है, phenol जो होता है बेंजीन के ऊपर OH phenol, तो phenol को क्या करना, डिसोसिएशन होने से it will convert it to phenoxide ion O minus and H plus will release. This is your phenoxide ion and this is your phenol. So phenoxide ion is the conjugate base of phenol. यदि कोई एसिड से H प्लस चला जाता है तो वो जो बेस रहता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है. यदि फिनॉल एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक हम बताएंगे तो हमको प्रूव करना है कि फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल. यदि फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल हो सकता है तो हाँ सर ठीक है, तो H प्लस देने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल बन जाता है. यदि वो वाला प्रूव कर सकते हो तो ये हो सकता है क्या, phenol is acidic in nature. So we have to prove that phenoxide ion is more resonance stabilized by phenol. So phenol से ज़्यादा स्टेबल होता है phenoxide ion. चलो phenol का रेजोनेंस करते हैं. This is the resonance of structure of phenol बना देते हैं. चिक OH. ऑक्सीजन का आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है. इधर 2 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4. समझ में? अब इसका रिजोनेंस करो तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो माइनस बेंजीन माइनस आई ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा तो इधर शिफ्ट होगा तो उसके पास वाला पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है. तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल का नेक्स्ट स्ट्रक्चर. इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन. अभी इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा. बाकी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है तो ये समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, हम क्लोरोबेंजीन में भी रेजोनेंस बनाए थे. इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला आएगा. तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इधर क्या होगा देखो. ओके तो इधर चला आएगा तो ये वाला हो जाएगा. इधर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है. ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होगा तो ये इधर होगा. अभी ये इधर हो गया, समझ में. नेक्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा. तो जैसे था वैसे हो गया भैया. These are the resonating structure of phenol. ओके इसका इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया तो ऑक्सीजन पहले से जो इलेक्ट्रॉन था वो भी हो गया. दिस इज द रिजोनेंट स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. तो यहाँ से फिनॉल का रिजोनेंस होता है. अभी उसी तरह फिनोक्साइड आयन का, दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल नोट कर लो. तो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो रिंग के अंदर क्या होगा, कंजुगेट पाई सिस्टम हमको बताया. रिजोनेंस कंजुगेट पाई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और पाई बॉन्ड के अंदर शिफ्ट होता है. तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होने से पास वाला पाई बॉन्ड कंजुगेट का पाई बॉन्ड होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है. जहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है. तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर शिफ्ट होता है और पास वाला पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट होता है. ये स्ट्रक्चर आ गया. फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता है, नेक्स्ट पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जहां पर शिफ्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया. अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होता है तो पास वाला पाई बॉन्ड फिर शिफ्ट हो जाएगा. तो जैसे का स्ट्रक्चर वैसे आ गया आपका. सो दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. अभी फिनॉल का रिजोनेंस के बाद हम फेनोक्साइड आयन का रिजोनेंस करते हैं. सो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फेनोक्साइड आयन. अब फेनोक्साइड आयन का रिजोनेंस करते हैं. डायग्राम दिखाई देता है. यस फेनोक्साइड आयन. ओके सो क्या होता है, इधर O माइनस 2 2 4 2 6 माइनस एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर लाया है. तो इधर क्या होगा, ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पास वाला जो इधर कर सकते हो, नहीं तो इधर दे दीजिए. ओके तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा. तो यहाँ से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जाने के बाद और ऊपर चार्ज नहीं होगा. ये चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज था ना, तो चार्ज यहाँ से क्या हो गया, कट हो गया. इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया.
तो चार्ज हो गया O 2 2 4, समझ में आ गया। अभी कोई भी चार्ज यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पहले से एक माइनस चार्ज था। देखो इधर कुछ चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रॉन पेयर चले आने से पॉजिटिव चार्ज हुआ, मगर इधर पहले से फेनोक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने के नाते क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर ट्रांसफर होगा तो ये चार्ज यहाँ से क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ से चार्ज चला जाएगा। तो ये हो गया नो चार्ज इज सेपरेट। देन ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया तो ये नेगेटिव चार्ज है। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर उधर चलेगा। समझ में आया, समझ में आया। देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। ये इधर आ गया और ये भी इधर चलेगा। अभी ये क्या होगा, ए वाला इधर आएगा तो ये वाला इधर चलेगा। कंजुगेट 5 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होता है तो जैसे था ऊपर के ओ के ऊपर वही माइनस आ गया, समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल हो गया, वो माइनस आ गया। तो क्या होता है इसे, देखो भैया ये फिनोल का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है और फेनोक्साइड आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये फेनोक्साइड आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। 2 2 4 4 8, ओके। तो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, ये आपको क्या ऑब्जर्व करने को दिखने को मिलता है। देखो भैया रिजोनेंस में कैसे स्टेबिलिटी हम डेवलप करते हैं। फिनोल ज़्यादा स्टेबल है ना फेनोक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है। हाउ विल कंपेयर दैट फिनोल इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड और फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड। तो कंडीशन नंबर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे हम स्टेबिलिटी देखते हैं। नंबर 1 होता है जिसके पास जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो उतना ही स्टेबल होता है। मोर इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। चलो फिनोल में कितना स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5, ओके। फेनोक्साइड आयन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 5, तो बराबर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नंबर 2 होता है, सो फर्स्ट हमने ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया, वी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बोथ फिनोल एंड फेनोक्साइड आयन इज सेम। नंबर 2 इज योर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ पर लोकलाइज होता है, डीलोकलाइज होता है। तो यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ डीलोकलाइज होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर में इधर भी नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो घूमता रहता है, काम हमेशा काम करता है, किधर एक जगह एक प्लेस पर नहीं होते, दैट इज डीलोकलाइज होता है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर घूमता रहता है, तो इधर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, ये भी बराबर है, इधर भी घूमता है। और नंबर 3 ये स्टेप हो गया, सेम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों में चार्ज ही डीलोकलाइज होता है। और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करने से थर्ड कंडीशन देखो क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड चार्ज सेपरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है जो कि ऑक्सीजन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव होगा तो वो इट इज कंप्लीटली अनस्टेबल। सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, सो मोर इज द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द चार्ज सेपरेशन लेस इज द स्टेबिलिटी। तो इधर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और इधर नेगेटिव चार्ज हुआ है तो इधर चार्ज सेपरेशन हुआ है। जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना लेस स्टेबल आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है और किधर भी चार्ज नहीं दिखने को मिलता है। सो देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, कहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, सो इट इज मोर स्टेबल, so it is more stable. So main point is charge separation. So due to less charge separation, very important point, separation, phenoxide ion is more stable, phenoxide ion is more stable, ये नोट कर लीजिए, जिसके कारण ड्यू टू लेस चार्ज सेपरेशन और ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ड्यू टू लेस चार्ज सेपरेशन और नो चार्ज सेपरेशन, यू कैन से फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। स्टेबल किससे, देन फिनॉल। तो फिनॉल में क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो अनस्टेबल होगा, समझ में आया। तो ऑक्सीजन नेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज होने से वो ठीक है, वो स्टेबिलिटी हो सकता है। तो जिसके ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फिनॉल, क्वेश्चन आ सकता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल क्यों एसिडिक है, नोट कर लीजिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिनॉल और फेनोक्साइड, देखो
फिनल जब H प्लस छोड़ देगा तो वो फेनोक्साइड आयन हो जाएगा। यदि ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा तो ये फिर H प्लस को खींच सकता है। समझ में आया ना? नहीं, यदि ये अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, H प्लस को इधर से फिर खींच सकता है, तो नेगेटिव वाला खींच सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ से रिजोनेंस करना पड़ता है। समझ में आ गया? यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस H प्लस को यहाँ से फिर और एक बार खींच सकता है, तो खींचने से H प्लस रिलीज नहीं होगा, तो एसिड की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। एसिड वो होता है जो H प्लस लॉस कर सकता है, H प्लस शो रिलीज कर सकता है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी ऑल्सो वी नो। सो H प्लस यहाँ पर रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो H प्लस यहाँ से रिलीज करना डिफिकल्ट क्यों होगा, सॉरी H प्लस रिलीज कर सकते, तो यहाँ से H प्लस को रहने दीजिए। तो रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फेनोक्साइड आयन होता है उसको स्टेबल बनना पड़ेगा। तो हमारा जो कारण था, हमको क्या दिखाना चाहिए था, तो फेनोक्साइड आयन इज स्टेबल। तो फेनोक्साइड आयन कैसे स्टेबल होता है यहाँ से पता चलता है। तो फेनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय इट्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बार बार एग्जाम में सवाल आता है, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, बिकॉज फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बाय रिजोनेंस देन फिनॉल, आज फेनोक्साइड आयन इज कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जो होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल होगा क्योंकि एसिड से H प्लस जाने से वो कॉन्जुगेट बेस उसका हो जाता है। तो फेनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अभी फिनॉल में और क्या क्या प्रॉब्लम होता है, इफेक्ट होता है, देखो समझ में आ गया। तो फिनॉल का रिजोनेंस से पता चलता है कि फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डायटिंग ग्रुप है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर आपको दिखने को मिलेगा। जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल का होता है वो ऑर्थो और पैरा पर दिखने को मिलेगा। सो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अभी चलो फिनॉल का एसिड इफेक्ट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, nature of phenol by effect of acidic nature of phenol by प्लस आई और प्लस एम इफेक्ट के ग्रुप के साथ अटैचमेंट होने से, और माइनस आई और माइनस एम, प्लस इंडक्टिव और प्लस मेजोमेरिक ग्रुप होगा, और माइनस एम आई और माइनस एम ग्रुप होने से माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। और इसको कह सकते हैं माइनस आई माइनस एम ग्रुप को हम कह सकते हैं क्या, EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। एंड प्लस आई एंड प्लस एम ग्रुप को कहते हैं क्या, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दोनों ग्रुप लगने से क्या प्रॉब्लम होगा, तो प्लस आई ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हैं, माइनस आई और माइनस मेजोमेरिक ग्रुप को कह सकते हैं EWG इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका एग्जाम्पल आपको मालूम होगा, 11 स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी बताया था इंडक्टिव मेजोमेरिक इफेक्ट में। प्लस आई ग्रुप में आपका अल्काइल ग्रुप जा सकता है, और जैसे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो भी हो सकता है, आपका इथोक्सी ग्रुप हो सकता है, ओके, आपका कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड सियानाइड ग्रुप भी हो सकता है, और लोन पेयर जिसमें होगा। और माइनस ग्रुप में NO2 ग्रुप आपको दिखा सकते हो, क्लोरीन ग्रुप दिखा सकते हो, हालोजन दिखा सकते हो, ये सब माइनस आई ग्रुप होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता रहता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के साथ एक क्वेश्चन आता है। चलो एक आपको बताता हूँ, फिनॉल सवाल दिया है, फिनॉल हमको मालूम है एसिडिक नेचर, फिनॉल के साथ NO2 ग्रुप डाल दीजिए, दिस इज योर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ओके। एक एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा है। और ये पैरानाइट्रोफिनॉल इसको पढ़ते हैं, और एक डालते हैं CH3 ऑर्थोक्रिसॉल कहते हैं उसको, OH एंड CH3। चलो, तो इफेक्ट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल का जो एसिडिक नेचर का इफेक्ट होता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर कैसे अफेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर कैसे इफेक्ट होता है हम बात करेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, तो इसमें NO2 देखो यहाँ पर लिखो, नोट करो, माइनस आई इफेक्ट के कारण, बाय माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, क्लियर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ये नोट कर सकते हो। बाय प्लस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। समझ में आ गया।
ये नोट कर लीजिए। तो अभी मुझे क्या करना है, इसमें कंपेयर करना है। ये चारों कंपाउंड दिया है, एक का नाम को तो आपको मालूम है, एक का नाम है फिनॉल और ये होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये होता है पैरानाइट्रोफिनॉल और इसको कहते हैं ऑर्थोमिथाइल फिनॉल कह सकते हो, और इसको ऑर्थोक्रिसल भी कहते हैं, कॉमन नेम उसका क्रिसल। इस चारों के अंदर कंपेयर करके मुझे बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। देखो पहले एक प्लस आई ग्रुप कौन है, ये प्लस आई ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, CH3 C2H5 इथाइल ग्रुप, ये सब ग्रुप प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर है CH3, तो CH3 इलेक्ट्रॉन अंदर इधर फिर पुश करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करने से क्या होगा, रिजोनेंस के साथ इधर जो माइनस चार्ज होगा H+ निकलने के बाद ये माइनस फिर क्या हो सकता है, रिजोनेंस के जाके इधर फिर माइनस में माइनस डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, फिर इसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। समझ में, माइनस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन जाके पहुंचेगा तो और भी नेगेटिव हो सकता है, तो जिसके कारण होगा क्या, इसका एसिडिक पावर कम हो जाएगा। तो सबसे कम पावरफुल एसिड ये रहेगा। समझ में आ गया। अभी फिनल तो एसिडिक नेचर हमको पता है, अभी इसमें कंपेयर करो NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, NO2 ग्रुप है कि कौन सा ग्रुप है, इधर लिखा हूं NO2 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप लगने से क्या होगा, ये मेजोमेरिक ग्रुप भी है, इधर से इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अंदर घुसेगा, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अंदर से फिनॉल से जो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस नेगेटिव चार्ज होगा, इस इलेक्ट्रॉन अंदर जाके अंदर जाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से नाइट्रो ग्रुप यहाँ से खींच लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ले जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस चार्ज था वो डीलोकलाइज हो जाएगा और माइनस चार्ज दिखने को नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर और बढ़ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो उसका मतलब होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल उससे भी ज़्यादा काफ़ी एसिड है। तो फिनॉल ऑर्थोक्रिसल से ज़्यादा एसिडिक है और नाइट्रोफिनॉल यहाँ से भी ज़्यादा एसिडिक है। अभी इसमें क्या होता है, ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल में पैरानाइट्रो उससे भी ज़्यादा है, ऑर्थोनाइट्रो क्यों कम है, उसका कारण है कि हम बताएंगे आपको। तो समझ में आ गया बच्चों कहानी। बेसिकली फिनॉल इज एसिडिक नेचर। फिनॉल के साथ यदि कोई प्लस आई ग्रुप और प्लस मेजोमेरिक ग्रुप अटैचमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो फिनॉल का एसिडिक नेचर से और एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो प्लस आई ग्रुप आपको मालूम होगा, प्लस आई ग्रुप लगने से इफेक्ट ऑफ एसिडिक नेचर इंक्रीजेस हो डिक्रीज हो जाएगा। और माइनस आई ग्रुप जैसे कि आपका नाइट्रो ग्रुप, हालो ग्रुप, ये सब लगने से इसका क्या होगा, एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एसिडिक नेचर कहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, कहाँ पर डिक्रीज हो सकता है, आपको मालूम है। तो इंक्रीजेस एसिडिक नेचर एंड डिक्रीजेस एसिडिक नेचर। तो अभी चलो, अभी एक क्वेश्चन है, ये सवाल भी बार बार CBSE बोर्ड में आता है, इसको याद रखो। इसको कहते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और इसको कहते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक है, which is more acidic? Orthonitrophenol is more acidic और पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक। द राइट इज which is more acidic? इसमें कंपेयर करो मोर एसिडिक कौन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, which is more acidic? The answer is your पैरानाइट्रोफिनॉल is more acidic than orthonitrophenol। ये सवाल बार बार पूछता है, why? Because in orthonitrophenol there is a hydrogen bonding occurs between the intramolecular hydrogen bonding. This is the orthonitrophenol structure. So here there is a chance of hydrogen intramolecular hydrogen bonding exist. ये फिनॉल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो होता है इंट्रा, एक मॉलिक्यूल का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने के नाते क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से इजी से रिलीज नहीं हो सकता है। समझ में गया। तो इधर से मगर ऐसे कोई प्रॉब्लम दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कारण क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल थोड़ा कम एसिड होगा, इसका हाइड्रोजन आसानी से नहीं जा सकता है, जैसे कि इसका हाइड्रोजन आसानी से जा सकता है। तो इधर हाइड्रोजन इजी कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल, बिकॉज ऑन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय योर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, योर
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, बार बार एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बोर्ड में आता है, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय व्हिच मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। समझ में आ गया दिस मेथड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसिडिक नेचर ऑफ अ फिनॉल। क्लियर। अभी चलता है फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी, किस किस के साथ रिएक्शन होता है, बेंजीन रिंग और ओएच बेंजीन रिंग के साथ फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन करते हैं। Another property we'll see. So acidic nature after another question is coming in NEET. बार बार नीट में एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। एसिडिक नेचर एक वेरिएशन के लिए पूछ रहा है कभी कभी। चलो वाटर और एसिटिलीन आपका CH111 एंड अल्कोहल, इस तीनों के अंदर एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करो एसिडिक नेचर। तो इसका क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस में भी आता है, व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एक क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो उसमें से वाटर का जो वाटर का एसिडिक नेचर इवन अल्कोहल से भी ज्यादा है। अल्कोहल इतना वीक एसिड है, तो वाटर इज मोर एसिडिक, इसका आंसर होगा। उसके बाद अल्कोहल होगा और उसके बाद एसिटिलीन होगा। दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। समझ में आ रहा है, ये याद रखो। Even water is strong acid, stronger acid than alcohol, than your acetylene. So this is some question and sometime is coming also in NEET exam. अल्कोहल का सब अल्कोहल नहीं, एक्सेप्ट आपको मिथाइल अल्कोहल, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल इट इज इवन ग्रेटर देन वाटर से भी ज्यादा होता है। एक्सेप्ट हर अल्कोहल हो सकता है एलिफेटिक का, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल, एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल इवन वाटर से भी ज्यादा एसिडिक नेचर है। तो बाकी जितना सारा इथानॉल पर चलो एग्जाम्पल दिया होगा, एक क्वेश्चन भी आता रहता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल। सो कैसे कंपेयर किया जाता है, तो कंपेयर यदि हम देखते हैं तो टोटल एक ऐसे सीरीज भी याद रख सकते हो। ऐसे कि कभी कभी एंट्रेंस में आपको जरूरत होगा एक क्वेश्चन, एंट्रेंस में बार बार ये सवाल आता रहता है। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो गया आपका एलिफेटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड 1 नंबर में होगा। उसके बाद हमने बात कर ली फिनॉल को, चलो दे दीजिए फिनॉल। उसके बाद हमने अभी देख लिया क्या, वाटर फिनॉल का मिथानॉल होगा, मिथानॉल कंपेयर दो। उसके बाद आपको वाटर को दे सकते हो, उसके बाद इवन अल्कोहल को दे सकते हो, उसके बाद आपका एसिटिलीन होगा। सो दिस इज ए राइट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर। अल्कोहल का मैं बार बार बताया हूँ, अल्कोहल का मिथानॉल, दिस इज द एसिडिक नेचर ऑर्डर, राइट ऑर्डर टू कंपेयर द एसिडिक नेचर। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपको याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फिर हम बात करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आएगा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे वेरी होता है। सो दिस नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। अभी चलो उसके बाद हम बात करते हैं और कुछ। तो ये था अल्कोहल फिनॉल और अल्कोहल चैप्टर का एसिडिक नेचर के साथ ये प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म होते हैं। अभी चलते हैं हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। अल्कोहल फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सो ये टॉपिक है केमिकल, प्रिपरेशन तो खत्म हो गया था, ये होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल केमिकल प्रॉपर्टी किसके साथ, विथ ऑलरेडी इन आवर लास्ट बेस क्लास डिस्कस्ड। नाउ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ विल राइट योर क्लोरोफॉर्म इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज ए कंप्लीटली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, राइमर-टाइमन reaction. Number 2 reaction we see the carbon dioxide in acidic medium. This reaction is named as Kolb's reaction. Another reaction we will see the oxidation of phenol and some important electrophilic substitution reaction of phenol. इनके अंदर हम देख सकते हैं उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
some of the important reaction of phenol in this video we will discuss. So one is very important reaction in council and examination is coming Reimer-Tiemann reaction or Reimer-Tiemann reaction in which phenol react with the chloroform and aqueous NaOH. So let's see, start one by one. First is your Reimer-Tiemann reaction. What happening in this reaction? In this reaction, what happening? When phenol react with your chloroform in presence of your aqueous sodium hydroxide, the product will be, when phenol reacts with the chloroform in presence of your sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide, clear? So students, when phenol reacts with the chloroform in presence of aqueous sodium hydroxide in a particular temperature, in some book it is written 340 Kelvin temperature, then तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले हैं एक्वेस, तो पक्का ये क्या होगा, साइड में सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये पहले प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा सोडियम फेनोक्साइड, यहाँ से H हटेगा और AOH के साथ वाटर निकल के चला जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका सोडियम फेनोक्साइड मिलेगा। और इसमें जो CH-Cl3 है इसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, इसमें क्लोरोकार्बिन आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट, जहाँ से क्लोरोफॉर्म से क्लोरीन निकल जाएगा, उसका मैकेनिज्म अलग है, हम पढ़ाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म से ये CH-Cl2 इधर आके अटैक करेगा, CH-Cl2, और इधर से H निकलेगा और क्लोरीन है -HCl हो जाएगा। समझ में आ गया पूरा कहानी? जब क्लोरोफिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ दिखाई नहीं देता है, और एक बड़ा कर ले, ओके ठीक है। जब फिनॉल रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, your chloroform CH-Cl3 in presence of aqueous sodium hydroxide and the temperature is here 300, how much Kelvin I told, 340 Kelvin temperature, then तो फिनॉल से यहाँ से जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है पहले निकल जाएगा, तो यहाँ से सोडियम है, सोडियम आके अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फेनोक्साइड ONA। और ये जो क्लोरोफॉर्म है उसका मैकेनिज्म कुछ अलग है, जहाँ से क्लोरीन एक निकलेगा और CH-Cl2 यहाँ पर अटैक करेगा। इसको कितना सारे बुक में रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं, मगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इसके लिए रिएक्शन इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 क्लोरोकार्बिन होता है, इसका इंटरमीडिएट, उसका मैकेनिज्म कुछ अलग है। क्लियर? तो लाइव क्लास में ऑलरेडी हमने बात कर लिया। तो फिनॉल के साथ स्टेट बोर्ड के लिए बच्चे के लिए इसका मैकेनिज्म कोई ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म किसके लिए भी ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर का। तो फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से क्या होता है, ONA इधर आके लगेगा, H निकलेगा, ONA लगेगा, तो यहाँ से वाटर निकल आएगा और CH-Cl क्लोरोफॉर्म जो होता है CH-Cl2 यहाँ से अटैच होगा, H और एक क्लोरीन HCl निकल पड़ेगा। समझ में गया? ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी ये क्या करेगा कंपाउंड, ये फिर और एक बार इस कंपाउंड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा NaOH। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसका ऑक्सीजन, इसको सोडियम जो है, सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, तो इधर से 2Na मॉलिक्यूल डाल दीजिए और एक आप कंपाउंड मिलेगा इसका, यहाँ पर ONA है, और जो CH-Cl2 है 2Na 2Cl 2NaCl हो जाएगा, वो वाटर निकल पड़ेगा, -2NaCl मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन और 2 सोडियम, 2 सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से 2H, ओके, यहाँ से H वाटर है, वाटर भी निकल पड़ेगा, तो ये आपका मिल जाएगा CHO, एल्डिहाइड ऑक्सीजन ग्रुप फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड मिलेगा CHO, तो एक ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशन होगा, इसका एक एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्मेशन होगा ONA। और इसके बाद आपको कहानी पता है, सोडियम फेनोक्साइड को हम फिनॉल से कैसे बनाते थे, उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफिकेशन कर दे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया जाए तो H यहाँ पर चला आएगा, ये बन जाएगा आपके लिए OH और इधर CHO,
तो माइनस NaCl। इस रिएक्शन में देखो ये तो स्टेप वाइज हमने किया, डायरेक्ट भी कितना सारे बुक में डायरेक्ट लिखते हैं। जब फिनल क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है 340 केल्विन टेम्परेचर के दौरान, तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ये वाला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। द मेन प्रोडक्ट इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड इसको पढ़ते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और इसके कॉमन नेम होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। समझ में आ गया पूरा कहानी। तो ये है जो मेजर प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन में कभी कभी फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH एट 340 केल्विन टेम्परेचर बुक में दिया है डायरेक्ट टू द प्रोडक्ट इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और सैलिसल्डिहाइड। बस बाई फाइनल इस प्रोडक्ट को भी लिख दिया जाए तो मार्क कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर राइमर-टाइमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन व्हेन फिनॉल reacts with the chloroform in presence of aqueous alkali, the product is your reaction intermediate here, but actually it is not a reaction intermediate. In NCERT book it is written, but actually इसका reaction intermediate ऐसे होता है CCl2, this is called dichlorocarbene। एंट्रेंस के लिए कभी कभी बार बार एक क्वेश्चन आता रहता है। The reaction intermediate for this reaction you can notice this is called your dichlorocarbene, dichlorocarbene। The reaction intermediate for your राइमर-टाइमन रिएक्शन है डाइक्लोरोकार्बिन। क्लोरोफॉर्म से वो एक क्लोरीन निकल के पहले जाएगा, वो रिएक्शन अलग है। तो अभी इसको हम मैकेनिज्म नहीं करेंगे, यहाँ पर इसमें मैकेनिज्म नहीं है। तो डाइक्लोरोकार्बिन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, याद कर लो। तो फिनल पूरे कहानी राइमर-टाइमन रिएक्शन का, जब फिनल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, और जिसको हम करते हैं क्या सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। क्लियर, दिस मिटा दें, ये होता है राइमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे उसका अब इसका नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन करते हैं। नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर में 2 है। कोल्ब्स रिएक्शन, इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अभी देखो कोल्ब्स रिएक्शन में जब फिनल क्या करेगा, व्हेन फिनल इज रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज होगा। व्हेन फिनल इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से रिएक्शन क्या होगा, व्हेन फिनल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करोगे तो फिनॉल, कुछ बुक में सोडियम फेनोक्साइड दिया है। तो पहले आप काम कीजिए, कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा, जब फिनॉल पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कर दिया जाए तो वो बन जाएगा सोडियम फेनोक्साइड। कितना सारा बुक में डायरेक्ट एक ही स्टेप में करता है, मगर आप जानना चाहते हो रिएक्शन कर सकते हो। तो फिनॉल को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला जाए तो सोडियम फेनोक्साइड पहले निकलेगा। उसके बाद आप एक काम करो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों डाल दीजिए। एसिडिफिकेशन कुछ बुक में स्टेप वाइज भी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड H+ एसिडिक मीडियम डाल दिया जाए, तो यहाँ से कहानी सोडियम फेनोक्साइड से आपका H लग जाएगा, तो ये हो जाएगा फिनल। और CO2 डायरेक्ट यहाँ से ऑर्थो पोजिशन में घुसेगा, तो ये हो जाएगा COOH, COO इधर से H निकलेगा COH। समझ में आ गया। तो इधर से O और Na को Cl, NaCl बाई प्रोडक्ट निकल आएगा। देखो इन कोल्ब्स रिएक्शन when phenol react with the aqueous sodium hydroxide first, so sodium phenoxide is formed. This is called your sodium phenoxide will form, which further react with the carbon dioxide. So carbon dioxide oxidize this compound in presence of dilute hydrochloric acid. In acidification, the product will oxidize to form orthohydroxybenzoic acid. ये 1 वाला का फंक्शनल ग्रुप है, 2 वाला क्योंकि मेजर है माइनर है, तो इसको ऑर्थो पोजीशन में OH लिखते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट इज योर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सो इन दिस रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज योर सैलिसिलिक एसिड व्हिच इज कॉल्ड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, when phenol is reacts with the sodium hydroxide to form sodium phenoxide, then sodium phenoxide react with the carbon dioxide, so oxidize the carbon dioxide sodium phenoxide to form your orthohydroxy benzoic acid or 2-hydroxy benzoic acid, which is popularly known as salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। समझ में आ गया। ये रिएक्शन को हम कहते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। क्या कहते हैं?
कोल्ब्स रिएक्शन, नोट कर लो, क्लियर। अभी देखो सैलिसिलिक एसिड एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट है जिसमें से हम एस्पिरिन जैसे टैबलेट निकाल सकते हैं। एस्पिरिन एक इंपॉर्टेंट टैबलेट होता है, वो एक एनालिटिक्स होता है। ओके, अभी ये 2020 आप देख सकते हो न्यूट में भी एक क्वेश्चन गिराया था एस्पिरिन के बारे में। एक सैलिसिलिक एसिड जो होता है, इस सैलिसिलिक एसिड में यदि आप सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक बहुत बढ़िया सा कंपाउंड है। इसमें से आप एक बना सकते हो, एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दिया जाए, CH3CO(O), एसिटिक एनहाइड्रेट डाल दिया जाए, इसमें से मेडिसिन निकलता है, उसका नाम होता है एस्पिरिन, जो कि कॉमन एनालिटिक्स मेडिसिन होते हैं। ओके, और नॉन नार्कोटिक जो मेडिसिन हम दुकान में ज़्यादातर मिलते हैं, एक है एनालिसिस ग्रुप में हो सकता है, एनालिटिक्स। ओके, तो मेडिसिन हमको दुकान में ही मिलता है, एस्पिरिन टैबलेट बन सकता है, क्लियर। सो दिस इज अनदर एस्पिरिन टैबलेट विल फॉर्म फ्रॉम योर सैलिसिलिक एसिड, इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, याद रख लो। सैलिसिलिक एसिड से भी हम और कुछ कंपाउंड बनाते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, योर ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, और एक कंपाउंड बनाते हैं सैलॉल, क्लियर। ये बहुत सारे कंपाउंड है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड से हम बनाते हैं एस्पिरिन, जो है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, देख सकते हो। एस्पिरिन जैसे कंपाउंड बना सकते हैं सैलिसिलिक एसिड से, और सब कुछ नहीं दिया है, एक ही दिया है, सैलिसिलिक एसिड से हम एस्पिरिन बना सकते हैं। तो एस्पिरिन बहुत सा इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन है, और वो मेडिसिन पेन किलर, पेन रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बारे में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ाएंगे। ओके, ड्रग्स के बारे में जब पढ़ाएंगे तो मेडिसिन कैसे बनाते हैं, कौन सा मेडिसिन खाने से कौन सा बीमारी ठीक हो सकता है, उसके बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक में। सो दिस इज द कोल्ब्स रिएक्शन, जहां से फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड को हम कहते हैं प्यार से सैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? सैलिसिलिक एसिड। अभी फिनोल का और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन वैसे नहीं, और एक रिएक्शन आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन भी फिनोल का कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन। यदि फिनोल को आप क्या करोगे, फिनोल जैसे कंपाउंड को आप ऑक्सीडेशन किया जाए, फिनोल को इन ऑक्सीडेशन किया जाए इन क्रोमिक एसिड, और बुक में दिया गया इन सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मिलने से क्रोमिक एसिड निकलता है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी फिनोल इज ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या होगा, इधर से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक OH वाटर निकल जाएगा, H2O। तो ये ऑक्सीजन इधर एक बॉन्ड डिसोसिएशन होने से वो इधर से डबल बॉन्ड आएगा। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजोक्विनन। क्या कहते हैं? बेंजोक्विनन, बेंजोक्विनन। बहुत बढ़िया सा कलर कंपाउंड है। जब फिनोल को ऑक्सीडेशन किया जाए, जब फिनोल को ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, और कुछ कुछ बुक में ऐसे भी डायरेक्ट दिया है, फिनोल को ऑक्सीडेशन करोगे तो ऐसे आ जाएगा कंपाउंड, इसको कहते हैं क्या? बेंजोक्विनन। फिनोल ऑन ऑक्सीडेशन in presence of chromic acid, this is your benzoquinone, clear? benzoquinone, समझ में आ गया? this compound is called your benzoquinone. phenol on oxidation, okay, अभी ऑक्सीडेशन खत्म हो गया इसका, फिनोल का सारे रिएक्शन हमको पता चल गया। अभी फिनोल तो एक ऑर्थोपैरा डायटोइक ग्रुप है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने बताया था कि फिनोल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनोल दिखा सकते हैं। तो फिनोल एक ऑर्थोपैरा डायटोइक ग्रुप है, फिनोल एक ऑर्थोपैरा डायटोइक ग्रुप है, ऑलरेडी हमने बताया था आपका मैकेनिज्म में, एसिडिक नेचर में बताया था। फिनोल एक कंप्लीटली ऑर्थोपैरा डायटोइक ग्रुप है। इसका हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर बात करेंगे, एक तो करेंगे नाइट्रेशन और एक है ब्रोमिनेशन, क्लियर? एक होता है नाइट्रेशन और एक बात करेंगे ब्रोमिनेशन। जब फिनोल, दो रिएक्शन यहां पर बुक में आपको दिखने को मिलेगा। फिनोल का रिएक्शन करेंगे पहले कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल को रिएक्शन करोगे तो यहां से क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल। यहां पर आज OH इज ऑर्थोपैरा डायटोइक ग्रुप, सो नाइट्रिक एसिड का NO2+ इज द इलेक्ट्रोफाइल
electrophile will attack either at ortho and para position. So a mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol will form. A mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. Ortho, para is major product, orthonitrophenol and paranitrophenol will form. Clear? So when phenol react with the dilute nitric acid, but when the question if you asking in the exam, when phenol write the reaction of phenol with concentrated nitric acid, the product is different. This is a mixture of, not mixture product, is from 3 molecules of nitric will take and तीनों NO2 molecule ortho para position में attach करेगा. तो इधर एक NO2, इधर एक NO2, इधर एक NO2. तो this molecule is called your 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. दिस इज प्यार से कहते हैं उसको पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड याद रख लो बेटा. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं पिक्रिक एसिड. जब फिनॉल का रिएक्शन कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होगा, जब फिनॉल का रिएक्शन कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ होगा, तो यहां पर तीनों नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल आपको डालना है और रिएक्शन में आएगा प्रोडक्ट आपके लिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. इस प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे भी नाइट्रेशन में होता है कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देना जरूरी है, क्योंकि तो NO2 प्लस क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस क्रिएट करेगा. आपको तो मालूम होगा नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोनियम आयन. ऑलरेडी 11th में बताया था, पिछले क्लास चैप्टर में जो उसमें भी बताया था. नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल. वो ही इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में अटैक करेगा. तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. जब फिनॉल कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो तीनों नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल, तीनों NO2 ऑर्थो पारा पोजीशन में अटैक होगा और तीनों H से निकलेगा, तीनों OH होगा. इधर नाइट्रिक एसिड में 3H2O इज द बाई प्रोडक्ट. समझ में आया? दिस इज द नाइट्रेशन रिएक्शन. अनदर रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन. उसी तरह ब्रोमीन का 2 रिएक्शन है एग्जाम के लिए. ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल. हम पढ़ाई कर रहे हैं फिनॉल चैप्टर. फिनॉल का ब्रोमिनेशन करो, हालोजिनेशन और ब्रोमिनेशन. तो फिनॉल का 2 रिएक्शन है. एक तो रिएक्शन है फिनॉल का, पूछ सकता है आपको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करो. तो सर ये क्या बात है? ब्रोमिनेशन हालोजिनेशन जैसे ब्रोमिनेशन है, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन. इसमें 2 रिएक्शन दिया होगा. कौन सा वाला पूछ रहा है बस एग्जाम में देखना है. मीडियम अलग अलग है. यदि सवाल ब्रोमीन वाटर दिया होगा, ब्रोमीन वाटर, नहीं तो एक्वेस ब्रोमीन, पानी मिला हुआ ब्रोमीन वाटर. सवाल बार बार पूछता है ब्रोमीन वाटर. यदि फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, द प्रोडक्ट तीनों ब्रोमीन मॉलिक्यूल आप यहाँ पर लेना पड़ेगा. जैसे पिछले थोड़े वक्त पहले हमने बता रहे थे आपको, नाइट्रिक एसिड में कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा तो 3 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल डाले थे. उसी तरह यदि सवाल पूछा है राइट द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, तो आपको तीनों ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेना है. तो तीनों ब्रोमीन इधर 1 2 3. उसी तरह ये व्हाइट प्रेसिपिटेट कलर का निकलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. इधर ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन. 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल will form plus 3 HBr. Plus 3 HBr. When phenol react with the bromine water, the product is your 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. ट्राइब्रोमोफिनॉल. समझ में आ गया कहानी? अभी देखो फिनॉल रिएक्ट करता है द ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो ये रिएक्शन ए प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थो नहीं तो पारा निकलेगा. ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनॉल विल फॉर्म. आइदर ब्रोमीन इधर लगेगा नहीं तो पारा पोजीशन में लगेगा. ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा ब्रोमोफिनॉल विल फॉर्म. ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पारा ब्रोमोफिनॉल. ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल नहीं तो पारा ब्रोमोफिनॉल निकल सकता है. तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल का. तो ब्रोमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन, बार बार एग्जाम में पूछता है. क्या होता है जब फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? तो आंसर आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. क्लियर? तो फिनॉल का ये सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने बात कर ली बच्चों. और सल्फोनेशन उसी तरह ऑर्थो एंड पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ सकता है. जैसे नाइट्रेशन वैसे ब्रोमिनेशन. सल्फोनेशन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. What we discussed, Friedel-Crafts alkylation, acylation also be same type of electrophilic substitution reaction can be seen by your phenol. Like your, if you want to see, you can see also sulfonation डाल सकते हैं. सल्फोनेशन क्यों, इसे भी छोड़ दे.
सल्फोनेशन लाइक फिनल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो OH माइनस हमने बताया था, SO3H प्लस ये जाके लगेगा तो ऑर्थोन पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड निकलेगा। सल्फोनेशन SO3H इधर मिलेगा, नहीं तो SO3H इधर भी दिखने को मिलेगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ओके ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि ए वाला फंक्शनल ग्रुप मेजर हो जाएगा इस तरफ। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन, ओके बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ए मिक्सर पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। समझ में आ गया? तो दिस इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय फिनॉल, क्लियर? सो फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, योर ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, like a Friedel-Crafts same reaction, alkylation, acylation, everything will show. So this is the chemical property of a phenol. Thank you.